A very good evening, Neha and dear members, for today's evening. And as you know, I'm going to discuss with a very important issue of these days regarding the health is wealth. We say, if there is health is gone, means everything is gone. So health is more important than wealth. So this is we are the members of Adabars Lucknow Group. It's a social awareness organization, and the founder of this organization is Ma'am Ifat Khan. These days, she is based at Canada, and she has started this group by, inviting all the people who are from Lucknow, and they work for the heritage and culture of Lucknow. Though today's topic is little different from heritage and culture, I thought the health is very important. If the health is not there, who is going to visit the heritage places and who is going to enjoy the culture? So that is why I felt of, hi Alka, Dr. Alka Jain is also here. She's a gynae. Hi, good evening. So now this is a small introduction of our group. Now I felt a need of fitness of our group members and their families. So as you know, these days people are suffering from dietary diseases, lots of such diseases like diabetes, obesity, poor eyesight, insomnia, hypertension, loss of energy, and sometimes acute weaknesses. So why are we suffering from such diseases? Because of nutrition. Disease is not only pathogenic, it's not caused because of bacteria or virus, it is also caused due to wrong food or rich food eating. So the balanced food is very important, and that too a good food, healthy food. So today our guest speaker is a professional nutritionist, Neha Mohan. Or as you know, 10.5% of global adult population is having diabetes, and this is going to increase by 12.2% by 2045. This is the study of the diabetic people. So that is why I thought of, my husband is also diabetic. My son is also at very young age, he became diabetic. So I thought of calling nutritionist and hope they are watching you. Let me tell about Neha. In short, Neha Mohan Sinha, she has done her MSc in Food and Nutrition from UGC NET, qualified. She's a founder and the owner of NutriWise Clinic. It's a diet clinic. हम इनसे जरूर मिलते रहेंगे अपनी हेल्थ के लिए. And she's an external lecturer at the Army Nursing College, Command Hospital. And then she's also a nutrition consultant at the Almond Board of California. And she worked as a diabetes educator with the Pfizer India, conducted several nurses training sessions, lifetime member of the Indian Diabetic Association, lifetime member of the Indian Society of Parental and the External Nutrition, and lifetime member of the Poshan Dhara Association. नेहा जी तो बस पोषण और न्यूट्रिशन पे ही वर्क करती हैं. शी इज द मास्टर ऑफ दैट. आई वेलकम माय ब्रदर Premen Srivastava. He is also online, and he's connected with us from Bangalore. So I will request Neha, please tell about you something about yourself. And this is a short, there are lot many things can be discussed about Neha. And in short, I must say, नेहा से मेरी मुलाकात कैसे हुई. हम 1 2 3 इवेंट पे मिले हैं, और आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद नेहा. और इवेंट भी था, वो शेफ लोगों का इवेंट था. एक बार साबरा मैम भी उस इवेंट में मिली थी हमें. मतलब हम लोग मिले थे साथ में ही. So Neha always speaks about the nutrition and healthy food, and by profession I was also a bio teacher. I used to talk a lot about the food fad, and the good food, and good nutrition for your good health and for your what to say, to be happy also. The food is happiness, है ना. हमारे यहाँ कहते हैं ना, खाना जो एक रिक्रिएशन है. तो आज नेहा उस पर प्रकाश डालेंगी. तो आई विल रिक्वेस्ट माय audience to switch off the videos and listen to Neha. So I'm over to you, Neha Mohan, please. Thank you so much, ma'am, and thank you for that very beautiful introduction. And I guess आपने तो सब बता दिया. I don't need to introduce myself much. Well, I'm into this field since the last 15 years plus, and also I have a passion for teaching. Like I
आई वाज टेलिंग यू। तो मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, तो अक्सर मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं वेट लॉस के लिए, तो मैं उनको पूरा इन डेप्थ बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको जो भी चीज, जो भी वो खा रहे हैं, जो भी डाइट ले रहे हैं, दैट शुड बी बैक्ड अप बाय अ गुड रिसर्च. So basically, that is it. Yes, ma'am. So if you allow me, I would like to share my PPT also, Sure, and I would sure. like to, and also I would like to thank all of you, all my listeners over here for inviting me as a guest. And जैसे मैम ने कहा, आई वुड एक्चुअली से कि जो डाइटिशियंस का जॉब होता है, जो न्यूट्रिशनिस्ट का जॉब होता है, वो प्रिवेंटिव होता है नेचर में, और जो डॉक्टर्स का जॉब होता है दैट इज क्यूरेटिव. तो जब पेशेंट बीमार होता है, डायबिटिक हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तब वो जाता है डॉक्टर के पास. लेकिन अगर उससे पहले अगर वो डाइटिशियन से मिल ले, न्यूट्रिशनिस्ट से मिल ले, तो आई गेस वो काफी हद तक जो है उसकी प्रॉब्लम्स वही थम सकती. राइट मैम? So, ma'am, can I share my, if you allow me, can I share Yeah, my sure, PPT? sure. 1 second. Okay, yeah, sure. So, हम बात करते हैं, जब तक आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज्यादा लेना है, एंड उसके बाद हमें सीरियल्स को लेना है. पहले ये था कि सीरियल सबसे ज्यादा लेना होता था, सीरियल्स एंड पल्सेस, लेकिन अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज्यादा एम्फसाइज करने लगे हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस, द लाइफस्टाइल चेंज. क्यों हो रहा है अभी आगे हम बताते हैं कि क्यों फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट है. उसके बाद उन्होंने बताया पिरामिड में कि उसके ऊपर फिर आप जो है सीरियल्स एंड न्यूट्री सीरियल्स ले, उससे थोड़ा कम जो है आपका मिल्क हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा, पल्सेस हो जाएगा, लेग्यूम्स हो जाएगा, एंड सबसे कम मात्रा में आपका नट्स, सीड्स, फैट्स, ऑयल्स, शुगर एंड सॉल्ट. सबसे कम जो होता है दैट शुड बी योर ऑयल, शुगर एंड सॉल्ट. सबसे टिप ऑफ द पिरामिड आपका होना चाहिए. सो दिस इज बेसिकली अ फूड I think पिरामिड जो I yes, think ma'am? Neha, white things should be avoided like salt and sugar at certain मैम age. जितना कम ले सकते हैं, हाँ, हाँ. बिल्कुल अवॉइड तो नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन आयोडाइज होता है सॉल्ट, वो आयोडीन का हमें उससे मिलता है, तो बिल्कुल तो अवॉइड. हाँ, शुगर अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा नहीं, फायदा होता है मिनिमाइज उससे. तो कर सकते हैं ना, मिनिमाइज तो कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल. सो हाउ मेनी कैलोरीज हमारी कितनी, लोग पूछते हैं कि हमारी हमें कितनी कैलोरीज बर्न करनी चाहिए, या कितनी कैलोरी हमें खाने में खाना चाहिए. तो उस खाली वो डिपेंड करता है बेसिकली कि आपका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कितना आप स्पेंड कर रहे हो कैलोरीज को. तो उसमें भी एक चीज होती है, सबसे पहला होता है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि बिना कुछ किए, लेटे हुए, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, खाली आपकी लंग्स फंक्शन कर रहे हैं, खाली आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है, खाली आपकी गट फंक्शन कर रही है, उस समय आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है, वो आपका मेटाबॉलिक, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसको हम बीएमआर कहते हैं, सुना होगा. दूसरा होता है कि फिजिकल एक्टिविटी में हम कितना कर रहे हैं. दूसरा होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, लाइक योर कुकिंग फूड, लाइक व्हेन यूर गार्डनिंग, यूर गिविंग, योर फ्लावरिंग द प्लांट्स. तो वो होता है नीट, दैट इज कॉल्ड नीट. उसमें कैलोरीज बर्न होती है. और थोड़ी कैलोरीज बर्न होती है जब हम खाना खाते हैं, तो वो खाना जब डाइजेस्ट होता है, तो उसकी डाइजेशन में भी इट बर्न्स अ लॉट ऑफ, मतलब सम अमाउंट ऑफ कैलोरीज. तो ये सारी चीज जब हम मिला के देखते हैं, और हमारा इंटेक और एक्सपेंडिचर, जब हमारा इंटेक कम होता है और एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तब तो हमारा वेट कह सकते हैं कि या तो लॉस होता है या बराबर रहता है. और अगर हमारा इंटेक ज्यादा है और स्पेंड कम कर रहे हैं, तब तो फिर वो कहीं ना कहीं जाके हमारी बॉडी में इट गोज एंड स्टेज, दे से फॉर अ लिटिल टाइम ऑन द लिप्स एंड फॉर एवर ऑन द हिप्स. सो ये प्रॉब्लम हो जाती है. एंड एक्चुअली एक एज के बाद जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, मतलब एनर्जी, द कैलोरी बर्निंग व्हेन यू आर डूइंग नथिंग, वो भी कम होने लगता है. तो बॉडी जो है वो क्या करती है, हमारी बॉडी एक्चुअली इस तरह से बनाई गई है कि एक एज के बाद, पता है जिसने बनाया हमारी बॉडी को, कि एक एज के बाद दांत कमजोर होंगे तो बंदा खाएगा नहीं. तो क्या करती है वो, कैलोरीज को मतलब स्टोर करने की कोशिश करती है, तो मेटाबॉलिक रेट को कम कर देता है. लेकिन हम लोग ने खाने को इतना ज्यादा महत्व दे दिया है अपनी लाइफ में कि हम लोग खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं. तो उससे क्या होता है, कैलोरी ज्यादा जाती है, बाहर कम हो निकलती है, और सारी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं. जो हमारे पहले, जो हमारे जो पूर्वज थे, या हम कह सकते हैं जो हमारे एंजाइम्स प्रोटीन्स है, हमारा ऑर्गन्स प्रोटीन है, एवरीथिंग मोर और लेस इज प्रोटीन. तो प्रोटीन वी शुड ईट
लॉट्स इन नंबर प्रोटीन के सोर्सेस, अगर नॉन वेजिटेरियन है आप, सो यू कैन ईट मीट, यू कैन ईट फिश, यू कैन ईट चिकन. मीट इज ऑफ कोर्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, बट यस, अगर लिटिल अमाउंट्स में एंड सही तरीके से कुक करके खाते हैं और साथ में एक्सरसाइज या वॉक करते हैं तो इट्स अ गुड ऑप्शन. Along with that, vegetarian sources में you have your nuts, you have your legumes, you have milk and milk products, एंड जो दालें खाते हैं हम लोग, और बाकी हर चीज में थोड़ा बहुत अमाउंट में प्रोटीन मिलता है बट कम मिलता है. तो एक तो ये चीज हो जाती है. दूसरी चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाना चाहिए. अब जब मेरे पास पेशेंट या क्लाइंट आता है तो बोलता है कि मैडम जूस पी सकते हैं या फल खाना. सो आई ऑलवेज टेल देम कि जूस जितनी जल्दी आप पियोगे ना, इट्स एक्चुअली प्री डाइजेस्टेड. उसका फाइबर तो निकल गया है, छान के दिया उसने. सो इट इज व्हाट, इट इज फ्रक्टोज, और वो उतनी ही जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएगा. और जब आप फल खाओगे समूचा, जब आप सेब खाओगे, तो उसको खाने में जितनी कैलोरीज बर्न होंगी, फिर वो आपके गट को, आपका इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट करेगा, अब्सॉर्ब करेगा. इट विल, एंड प्लस उसमें फाइबर होता है विच टेक्स लॉन्गर टू डाइजेस्ट, विच टेक्स लॉन्गर टू अब्सॉर्ब. और उसके साथ क्या होता है कि शुगर की स्पाइक एकदम से नहीं बढ़ती है. जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, और एक्सेस जब ब्लड ग्लूकोज हो जाता है तो एक्सेस जाके फैट में कन्वर्ट हो जाके हमारे उसी जगह पे जाके लग जाता है जहां पर हम नहीं चाहते हैं. एडिपोज टिश्यूज में, मतलब जहां पर हमारे या तो ऑर्गन्स के ऊपर जाके डिपॉजिट होगा या लिवर पे होगा, मतलब ऑर्गन्स में, या फिर हमारे फैट वाले एरियाज पे होगा. और अगर हम फाइबर रिच फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, वेरी गुड तो पॉइंट. उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है. और जितना टाइम वो डाइजेस्ट में लेगा उतना धीरे धीरे उसका शुगर स्पाइक होगा. जब शुगर स्पाइक कम होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो ब्लड एक्सेस ग्लूकोज जो है वो आपके ब्लड में नहीं रहेगा. तो आपकी एक्सेस ग्लूकोज जब नहीं रहेगा तो वो फैट में नहीं कन्वर्ट होगा, एंड यू विल नॉट बी गेनिंग वेट. ईट अ रेनबो कलर्ड डाइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि पिरामिड में नीचे रेनबो कलर्ड डाइट बोला दैट है. इज व्हाई नेहा वी से कि जितना कलरफुल सैलेड और फ्रूट्स खाने चाहिए, 5 टाइप्स ऑफ एंड सीड्स, nuts and all. That is एब्सोल्युटली, very good for the health. Yes. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो वो रेनबो कलर्ड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पानी ज्यादा पीना चाहिए. जंक फूड जो कि आजकल सब खाते हैं, आउट ऑफ स्ट्रेस दे ईट, दे वांट टू एंटरटेन देमसेल्व्स, तो वो जंक फूड खाते हैं. आजकल एक वेंट आउट थेरेपी सेशन के रूप में हो गया है कि हमें बाहर का खाना है क्योंकि आज हम इंजॉय कर रहे हैं. आप घर पे बना के आप इंजॉय नहीं करते I हैं think जनरली. once in a month or once in a fortnight, it is okay, but not daily. दैट्स ओके. या बट given that you are exercising also and the rest of the days you are refraining from eating anything, मतलब ये नहीं कि अच्छा चलो आज एक समोसा खा लेते हैं देखा जाएगा, फिर अगले दिन हुआ अच्छा चलो आज एक पेस्ट्री खा लेते हैं, ये वाला नहीं होना चाहिए. अगर आपने अपने आप को टारगेट दिया हुआ है कि हम वंस इन अ वीक या वंस इन अ फोर्टनाइट ही खाएंगे, तो बाकी दिन अगर आप सिंपल डाइट रखते हैं देन तो यू आर ओके, मतलब तब तो आप कुछ भी खा सकते हैं. और एक्सरसाइज ऑल्सो for that matter. ठीक है. Then obviously say no to cigarettes, limit alcohol and walk and exercise. Sitting is the new smoking. Smoking is injurious to health. They say smoking kills. Smoking के लिए कभी ये नहीं कहा जाता है कि limit smoke. They always say quit smoking. Alcohol Yes. के लिए कहा जाता है limit your alcohol. लेकिन smoking के लिए हमेशा कहा जाता है quit smoking. Quit. एंड सिटिंग को बोला गया है सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, बिकॉज आजकल सब के सब जो है सिटिंग जॉब कर रहे हैं. आई हैव सीन पोस्ट कोविड Especially the IT people and all, yeah, they are doing maximum desk work, less एब्सोल्युटली. of और जब से physical work. एग्जैक्टली और जब से उनको वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है तब हाँ, से और भी उनका मुश्किल हो गई है. और मुश्किल हो गया. आई सी देम लाइंग ऑन द बेड, इधर उधर कैसे भी बस लेटे रहते हैं. एंड फॉर आवर्स दे सिटिंग, दे डोंट. तो वंस यू सिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो पता है क्या होता है, आपका जो ब्लड फ्लो होता है बॉडी में वो स्लो हो जाता है. हाँ. और उसकी वजह से फैट का डिपोजिशन का रेट बढ़ जाता है. आपकी इंसुलिन जो है वो कम होने लगती है बॉडी में, जिसकी वजह से यू बिकम अ डायबिटिक. तो कायदा ये होता है कि आफ्टर एवरी say 1.5 2 hours you need to stand up, you need to थोड़ा सा जंपिंग जैक्स करके कुछ भी करके you need to move. तो I generally tell them कि इतना पानी पियो कि हर 1 1.5 घंटे में you have to get up and rush to the washroom. Neha, I would like to
tell you one thing. We are short of time, just 5 minutes left. Right, So, right, if ma'am. anybody has any question to ask from Neha, you're open to ask questions. Yeah, sure, And sure. or you can visit her at her clinic. Sure, absolutely. And मैं तो विजिट करूंगी, मेरी मोहल्ले की डॉक्टर है, इसलिए बिल्कुल यहाँ नो मोर बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल एंड इट बिल्कुल इज आप वेरी करिए. वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी Thank you इंफॉर्मेटिव. so Yes, much, yes. ma'am. Coming from a professor आज means a lot. आज से मैं शुगर छोड़ रही हूँ, फीकी चाय पीऊंगी. आपने मैम बोला था ना ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में बताने को. हाँ हाँ. तो आजकल कितने सारे प्रोबायोटिक और इसके नाम से चीजें बिक रही हैं. I know. प्रोबायोटिक. सो बेसिकली प्रोबायोटिक क्या होता है? जो हमारे यहाँ अचार होता था ट्रेडिशनल, जो बिल्कुल बिल्कुल अचार, दैट इज अ प्रोबायोटिक, जो बिल्कुल. कि हमेशा से हम लोग खाते आ रहे हैं. जो कांजी वड़ा और कांजी की जो चीजें बनती थी वो सब कांजी, प्रोबायोटिक तो थी. ये सब प्रोबायोटिक थे. और अब हमारा ये कर्ड, बेस्ट हमारा कर्ड है. एब्सोल्युटली. और अब जाके जब ये कोरिया और यूके और यूएस में केफीर और कम्बुचा और पता नहीं किस किस नाम से वो किमची किमची फेमस दे हो रहा है, किमची किमची सैलेड के किमची. नाम से हाँ. फेमस हो रहा है, तो लोग बड़ा उसका नाम लेते हैं कि किमची खाना है. मतलब ये pickled vegetables, they call it pickled vegetables. pickled vegetables, and pickles are basically a very good source of probiotics. Exactly. They help, and it's probiotic pickle. that's different. Right. And then millets हमारे ट्रेडिशनल जो कि वापस आ गए हैं. बिल्कुल. अब तो सबसे महंगे हो गए मिलेट्स नॉर्मल ग्रेन से. सबसे महंगे हो गए मिलेट्स because they're the new hero right now. And gluten free होते हैं आजकल. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है ना मैम, एक्चुअली बेसिकली क्या होना शुरू हो गया है कि हम लोग ने पहली चीज तो जो हमारा लाइफस्टाइल खराब हुआ, हमने चलना फिरना छोड़ दिया, हमने एक्टिविटी छोड़ दी, है ना. दूसरी चीज जो पोल्यूशन जो हमें मिलता रहा, अब जो पोल्यूशन है और आज से 20 साल पहले कितना कम था और अब कितना ज्यादा है. तीसरी चीज जो हर चीज में, हर खाने में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आने लग गई है कि हमारी जो गट है ना, गट में चेंजेस आना शुरू हो गया है, गट में इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो गया है. वो हेल्दी बैक्टीरिया ही खत्म हो रहे हैं गट के. बिल्कुल हेल्दी बैक्टीरिया. अच्छा, एक चीज और भी नेहा है कि हमारे यहाँ क्या कि जरा भी हम बीमार पड़ते हैं इन इंडिया, पीपल हैव दिस नोशन, तीसरे दिन एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर से पूछे खाने लगते हैं. उससे क्या होता है, मेरे अच्छे बैक्टीरिया गट के मर जाते हैं. बिल्कुल. सो देयर वाज दिस बहुत ही अनहेल्दी चीज. लाइक इन यूएस एंड ऑल, दे डॉक्टर्स नेवर गिव एंटीबायोटिक्स. They let the body fight against the virus or bacteria. मैम यही तो रीजन है कि पहले पैरासिटामोल 500 में काम चल जाता था, अब 650 में, बिकॉज हमारी बॉडी में बढ़ते जाएगा, उसका ग्रेड बढ़ता है, पोटेंसी बढ़ाते जाएंगे, वो आपको यही नॉन इफेक्टिव हो जाती है, हम इम्यून हो जाते हैं इनसे. बिल्कुल. और बैक्टीरिया भी इम्यून हो रहा है मेरी एंटीबायोटिक से. बिल्कुल हो रहा है मैम, बिल्कुल हो रहा है. अब तो नए नए स्ट्रेन्स बनने लगे हैं बैक्टीरिया के भी, जो कि मतलब वो कर लेता है, कोई भी दवा को ओवरकम कर लेता है. अब तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं. So Neha, we are about to finish. The time is running.